Hello viewers, welcome to the Mechanical Engineering Department, Ramchandra Chandravanshi Institute of Technology under the banner of Faculty of Engineering, Ramchandra Chandravanshi University. This is Dr. Avinash Kumar, Head Mechanical Engineering Department. Here, the first video is about to Engineering Mechanics Lab. I am with Mr. D.K. Pathak, Senior Lab Technician, Mechanical Engineering Department. In this video, we are going to learn about how we can find out the moment of inertia of flywheel through falling weight method. So here we talk about Engineering Mechanics Lab, Mechanical Engineering Department, RCI. There is a setup of flywheel and the objective of experiment is to find out the moment of inertia of flywheel through falling weight method. Before starting the demonstration video, we have to understand about some basic terms. What is flywheel? Where it is applicable? What is moment of inertia? How we can find out the moment of inertia by general formula. So one by one we will discuss about it. What is flywheel? Flywheel is just an energy reservoir. अगर हम सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो फ्लाईव्हील एक घड़े की तरह है। जब हमें प्यास लगती है तो जैसे हम घड़े के पास जाकर पानी पी लेते हैं, अगर हमें प्यास नहीं लगी है तो एज इट इज पानी जो है घड़े में रखा हुआ है। द सेम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लाईव्हील वर्क्स इन एनी मैकेनिज्म। व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, द एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम फ्लाईव्हील टू an engine. When energy is not required, the energy will store in the flywheel. So basically, for a smooth functioning of any engine, flywheel is essential. For minimizing the fluctuation of speed, flywheel is required. In the next term, we discuss about moment of inertia. What is moment of inertia? In general, there are two types of moment of inertia: area moment of inertia and mass moment of inertia. And what it is? Suppose for any geometrical figure, we have to find out the moment of inertia, such as circle, rectangle, square. Then that moment of inertia means area moment of inertia, because for any geometrical figure there is no mass. And when we say mass moment of inertia, then it means it is about any object where mass is present. So now it is clear, there are two types of moment of inertia: area moment of inertia and mass moment of inertia. So here we are going to find out the moment of inertia of flywheel. That means there is some mass. So the basic formula for moment of inertia is I is equal to mr square and I is equal to ar square. So it is clear, m represents mass, a represents area. So for this experiment, we will discuss about I is equal to mr square, and r is the distance between the object and the axis through which we are going to find out the moment of inertia. So here, let's go in Engineering Mechanics Lab, Mechanical Engineering Department, where Mr. D.K. Pathak will demonstrate you how we can find out the moment of inertia of flywheel through falling weight method. Here we go. On the shaft and a known weight is attached to the other limb of the rope. This rope is On the on the shaft. ये हो गया shaft. ठीक है, shaft को क्या करना है? ई shaft पर known weight attached. हाँ, इसको पहले राउंड करना है. ठीक, राउंड जब हम कर लिए, अब ये ध्यान देना है कि रोप एक दूसरे पर नहीं रहे. ठीक है, एक नॉन वेट को हमको इसमें डाल देना है. ठीक, नॉन वेट जो भी होगा Other end of the rope. हाँ
ठीक है, इसको हम क्या किए, रोप को डाल दिए। एक दूसरे पर रोप ग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है। नॉन वेट निकालो, दो हाथ के निकालो, सब निकालो, ठीक है। नॉन वेट कितना है? Non weight attached to the other limb of the body. नहीं आप इसको क्या किया हम? अटैच कर दिए, अटैच कर दिए, अटैच। नॉन वेट कितना हो गया? हाफ के जी हो गया नॉन वेट। अब इसको क्या करना है? Height from bottom of the weight to the ground is measured and noted. ठीक है, Height from the bottom of the weight to the ground is measured and noted. Means height from bottom to the ground को करना है और attach करना है। बीच में हो गया। कहाँ से कहाँ तुम बताओ, तुम तो लाइव नहीं किया। बॉटम साइड से कहाँ तक? ग्राउंड। बॉटम साइड का हुआ ये हुआ, ठीक है। बॉटम साइड टू ग्राउंड कितना सेंटीमीटर होगा? 100 सेंटीमीटर में लगना, ठीक है। चलो इसको एक आदमी पकड़ो, प्लस ले लो, कितना सेंटीमीटर बोलना, थोड़ा बढ़ाना होगा। 130 पर लो, चाहे 25 पर लो, कितना होगा बोलो, अब करें ग्राम कितना है? 110.2 नहीं, और एक और आगे अब थोड़ा 120 पर ले लो, 120 कितना हो गया? 120 को नोटेट करना है। हाँ, कितना हाइट हुआ? हमसे क्या कर दिया? 60 पर हम राउंड किए रोप को। इसके बाद नॉन वेट, जो भी आपके पास नॉन वेट है, जैसे नॉन वेट कितना है हमारे पास? 500 ग्राम। हाइट मेजर किए, जो हाइट है मेजर कर दिए, ठीक। Weight is announced to fall and both stopwatches are started simultaneously. As soon as the weight touches the ground, one of the two stopwatches is stopped and time t1 is noted. ठीक है, It means कि सर 2 stopwatches चाहिए। 2 स्टॉपवॉच रहेगा, ठीक है। 2 स्टॉपवॉच में एक स्टॉपवॉच, जैसे व्हील को हमें स्टार्ट किए 2 स्टॉपवॉच रोक नहीं, जैसे 2 स्टॉपवॉच, दोनों स्टॉपवॉच एक ही साथ स्टार्ट हुआ, ठीक है। जब ये वेट व्हील जब स्टार्ट किए, वेट जब ही ग्राउंड को फॉल किया, वो मेरा टाइम एक स्टॉप वॉच उसमें से मेरा स्टॉप कर देगा, वो टाइमिंग क्या होगा? ठीक। सेकेंड वॉच शुड बी स्टॉप्ड व्हेन फ्लाईव्हील कम्स टू रेस्ट। रेस्ट हो जाएगा तो t1 को शिफ्ट हो जाएगा। नहीं, ये क्या हो गया? ये क्या कर रहा है कि जिसे ये t1 हुआ, यस सर, यहाँ से ग्राउंड पर फॉल किया, ये t1 हो गया, t1 प्लस t2 हो गया। t2 हो गया, t1 प्लस t2 हुआ। t1 प्लस t2 हुआ, सेम प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर सेम वेट फॉर 3 डिफरेंट टाइम। 3 डिफरेंस है, सेम वेट 3 डिफरेंस है। जैसे हम हाइट 120 10 सेंटीमीटर कम कर दिए, 110 फिर 10 सेंटीमीटर कर दिए, 100 और 3 ऑब्जर्वेशन टेबल मिला। ऑब्जर्वेशन टेबल देखो क्या कर रहा है, हमको क्या क्या मिला? वेट न्यूटन, हाइट वेट को ये क्या है? ग्राम में है, न्यूटन में कन्वर्ट कर देना है, ग्राम को हमको न्यूटन में कन्वर्ट कर देना है। आगे सर हाइट मीटर, हाइट मीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में आप ले रहे हो तो मीटर में उसको कन्वर्ट करो, जो हाइट की है t1 इन सेकंड, t1 इन सेकंड, t1 plus t2 also in second, हाँ। t2 also in second और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाइट 3 मीटर। ठीक। अब इसको कैसे आप निकालें? जैसे 2 स्टॉपवॉच को करना, दो मोबाइल में तुमने दिए, तुमने निकाला, इसको दे दो। माइक्रो सेकेंड भी लेना है, ओनली सेकेंड नहीं, माइक्रो सेकेंड भी लेना है। अब जैसे दोनों स्टॉप वॉच मेरा जब स्टार्ट होगा तो एक ही साथ स्टार्ट होगा,
एक जो ही ग्राउंड पर ये प्लेट फास्ट स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा। टाइम रुकेगा तब स्टॉप होगा। हाँ, तो वो टाइम क्या देगा हमको? दूसरा स्टॉप वॉच हमको क्या देगा टाइम? अब आपस में डिसाइड करो कौन किसका रीडिंग देगा। हाँ, स्लाइडिंग का ठीक है, जैसे ही ग्राउंड का ठीक है। ग्राउंड पर जो आएगा वो हो गया P1, लेकिन व्हील तो रुकेगा नहीं, उसी समय स्टॉप नहीं करेगा, रेस्ट में नहीं आएगा। वो टाइम में क्या होगा मेरा? P1 प्लस P2, तो T2 निकालना होगा तो निकल जाएगा, माइनस का फिर 31 प्लस 2 माइनस निकल जाएगा। इसके बाद MI निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसको जो फार्मूला है उस पर। तो हमको मिल क्या रहा है? वेट मिल जा रहा है, हाइट मिल जा रहा है, T1 प्लस T2 मिल जा रहा है, बाकी निकल जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? लास्ट में हम डायमीटर ले लेंगे 7, डायमीटर 7 जो भी होगा 2.5 है, उसको हम नोट कर लेंगे। ठीक, स्टार्ट करें, देखना स्टार्ट। जो टाइमिंग है वो टाइमिंग हम नोट करते हैं। यही फिर इतना ही, कितना पर हम ये हाइट कितना था? 120। फिर इसी को सेम प्रोसेस में 120। T1 is 5.39 हाँ हाँ, and T1 plus T2 उसको नोट कर लेते हैं। सेम वेट रहेगा, हाइट डिफरेंस करेगा, डिफरेंट होगा ना, हाइट अलग हो जाएगा। टाइमिंग कितना कितना आ रहा है कैसे कैसे नोट, वो हमको नोट कर लेना है और उसके अनुसार हमको आई निकाल लेना है। ठीक, ये हो गया हमारा क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया।